Welcome everyone to presentation on science EVS and chapter number 1 are body parts and this is part 1 of presentation. So बच्चों आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आवर बॉडी पार्ट्स प्रॉब्ली आप सेकेंड में भी पढ़ रहे थे, थर्ड में भी पढ़ रहे थे एंड फोर्थ क्लास में भी पढ़ रहे हो, बट दिस टाइम इट इज़ बिट डिफरेंट. अभी तक जो है वी वर मोस्टली डिस्कसिंग external body parts. So suppose this is the body, this is the human body, okay? Now with the help of flow chart, this is called flow chart, हम समझने की कोशिश करते हैं कि how many parts are there. So our human body parts are divided into two parts. One is external and the other one is internal. Now external body parts are the parts that can be seen from outside. For example, hands, legs, eyes, ears and so on, nose. So जो basically हमें बाहर से दिखता है उन parts को हम बोलते हैं external body parts. But हमारे body में और भी बहुत ज़्यादा parts हैं जो हमें दिखते नहीं हैं. So उनको हम बोलते हैं internal body parts. So what is internal body parts? The parts that cannot be seen from outside, such as brain, liver, kidneys, stomach, heart and lungs. Now today we will talk about those body parts and their function. और थोड़ा सा it's a different sort of discussion जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और आप साथ में you will learn about various internal parts of the body. So let's continue. So our body organs, as I told you, we have got two type of body organs. By the way, organs and parts both means same. So body parts or body organs both are same, and internal and external I have already explained you, and this is our body. So now let's go and watch this video. और ये वीडियो हमें बता रहा है ब्रेन के बारे में. हाउ डज ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के मतलब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ब्रेन बेसिकली व्हाट डज इट डू. एंड बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो टेल मी वन थिंग. आपके घर में या तो आपके दादाजी या आपकी दादी या पापा या मम्मी वो बॉस हैं, वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है घर में. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी तो कोई ना कोई बॉस होगा ना जो डिसाइड करता है कि ये काम करना है कि नहीं करना है. सो हु इज़ दैट बॉस इन आवर बॉडी? द बॉस इज ब्रेन. सो लेट्स गो थ्रू द वीडियो. I'm your brain, part of the central nervous system. Your cranium's my home, and if you want to learn, then listen. I'm the boss of all the functions in your body. I weigh about 3 pounds, but I'm the leader of the party. The cerebrum controls your thinking and your muscles. It also stores all memories. Without it, you would struggle. The left cerebrum controls the right side of the body, and the right cerebrum controls the left, though it is tiny. The cerebellum controls your posture and your balance. The coordination of your movement is also its talent. It's located in the lower back of your brain. It is rounded in structure, as I've gone on to explain. I'm your brain, part of the central nervous system. Your cranium's my home, and if you want to learn, then listen. I'm the boss of all the functions in your body. I weigh about 3 pounds, but I'm the leader of the party. Your brain stem is at the bottom of your brain, connecting brain to spinal cord to form a neural signal train. Your brainstem maintains vital control of your heart and lungs. It controls important reflexes to make sure your body runs. Your pineal gland produces all your precious melatonin, which can help you sleep at night and makes you wake up in the morning. I'm your brain, part of the central nervous system. Your cranium's my home, and if you want to learn, then listen. I'm the boss of all the functions in your body. I weigh about 3 pounds.
वेरी गुड. सो इससे आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? सो वन थिंग विच यू अंडरस्टूड कि म्यूज़िक अच्छा था, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट इससे 2-3 चीज़ें क्लियर होती है. नंबर 1, ब्रेन इज़ द बॉस ऑफ आवर बॉडी. एंड ब्रेन के इसमें 3 मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं. और कौन कौन से 3 पार्ट बताए थे ये वीडियो में? वन वॉज सेरेब्रम एंड दिस इज़ द आउटर शेल ऑफ द ब्रेन. और ये जो है बेसिकली हमारे जितने भी सेंसेस हैं, स्मेल, हियर एंड ऑल आर सेंसेस, थिंकिंग, लर्निंग, ये सब कंट्रोल करता है सेरेब्रम. और सेरेब्रम के एक्चुअली में 2 पार्ट होते हैं. ये 2 टुकड़ों में होता है. ऑफ कोर्स इट इज़ कनेक्टेड बट देयर आर 2 पार्ट्स. वन इज़ द लेफ्ट सेरेब्रम एंड द अदर वन इज़ राइट सेरेब्रम. तो अगर वीडियो में देखा हो आपने तो जो हमारा जो लेफ्ट सेरेब्रम है वो हमारे जो राइट साइड के जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनको कंट्रोल करता है. एंड जो राइट सेरेब्रम है वो लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है. दैट इज़ वन. देन देर इज़ नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड सेरेबेलम. और ये क्या करता है? ये जो हमारे पॉस्चर्स हैं, जैसे आप जब प्रेयर होती है, असेंबली होती है, तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं, राइट? अलर्ट पोजीशन में. सो वो कौन कंट्रोल करता है? वो सेरेबेलम करके जो पार्ट होता है वो कंट्रोल करता है. एक छोटू पार्ट होता है कंपेयर टू सेरेब्रम. सो ऑल आवर बैलेंस ऑफ द बॉडी, अगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टैंड स्ट्रेट. देन द नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम और मेडुला. सो ये क्या करती है? जितने भी पार्ट्स जो भी आपके फंक्शंस हैं या जो आप इनएडवर्टेंटली करते हैं, फॉर एग्जांपल से ब्रीदिंग, आपको पता नहीं चलता आप ब्रीथ करते हैं, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है आपका बॉडी का. सो देन आप आई ब्लिंक करते हैं, राइट? सो ये जब जो चीज़ें हैं जो अपने आप होती हैं, इन सब को कंट्रोल करता है मेडुला. सो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बहुत है. और एक और चीज़, ब्रेन का जो वेट है वो ज़्यादा नहीं होता, 3 पाउंड होता है. इट्स लाइक रफली से 2 kgs, 2 किलो के आसपास. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट internal organ of our body. And what is our next internal organ? Lungs. So let's go through lungs. We are your lungs. We love to keep your body going. We provide the oxygen to fuel your cells so they keep flowing. We're your lungs. Part of the respiratory system. You can find us in your chest. Keeping us healthy is your mission. It starts in your mouth and in your nasal cavity. When you take in a breath of air, it fills your trachea, you see. Your trachea is there to move the air that you breathe into the bronchus in your lungs. They look just like little trees. Small branches called bronchioles. They guide the air through me, which pulls it to these little sacs, and they're called alveoli. We are your lungs. We love to keep your body going. We provide the oxygen to fuel your cells so they keep flowing. We're your lungs. Part of the respiratory system. You can find us in your chest. Keeping us healthy is your mission. The alveoli's job is to take oxygen from air and pass it through the walls of capillaries to blood cells in there. They also take carbon dioxide off of your blood cells, which travels through your respiratory system so you can feel well. The right lung has an upper, middle, and a lower lobe. The left lung only has the upper and the lower lobe, you know. We are your lungs. We love to keep your body going. We provide the oxygen to fuel your cells so they keep flowing. We're your lungs. Part of the respiratory system. You can find us in your chest. Keeping us healthy is your mission. Very good. So again the music was fantastic, right? Apart from that, बेसिक चीज़ें जो हमें लंग्स के बारे में क्लियर हुई. There are 2 lungs in our body and that is basically protected inside the chest. It's more towards the backbone. And lungs जो है, it's a part of your respiratory system. And what is respiratory system?
जो हम ब्रीथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, उस सिस्टम को बॉडी में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं, एंड व्हेन वी ब्रीद आउट इट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो सिकुड़ते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें लंग्स के अंदर जो है ऑक्सीजन ब्लड सेल्स में जाती हैं एंड CO2 जो है वो ब्लड सेल से ये फिल्टर आउट करते हैं लंग्स। एंड दैट इज़ वाई व्हेन वी ब्रीद इन एयर, और एयर में से काम की चीज़ क्या है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो ये यूज़ कर लेते हैं लंग्स, और जब वापस जो हमारे बॉडी में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो भी वहीं से एक्सट्रैक्ट हो जाती है, निकल जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी ब्रीद आउट। जब हम सांस बाहर फेंकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग आउट, उस वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, सो we'll learn only this much about lungs. Now the next one is heart. And what does heart do? अगर आपके घर में कार है या इवन मोटरसाइकिल है, बाइक है, तो आप देखिए कि उसमें एक इंजन होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल से अगर आपके घर में बोरिंग है तो एक पंप होता है जो पानी को एक ज़्यादा हाइट पे फेंकता है, या इवन नल के पानी के लिए आप लोग यूज़ करते हैं एक पंप इफ़ द वाटर फ्लो इज़ नॉट सफिशिएंट। सो हार्ट जो है हमारी बॉडी में, इट्स लाइक अ पंप, और ये ब्लड को क्या है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। नंबर 2, हार्ट जो है कभी रेस्ट नहीं करता, हमेशा पंप करता रहता है ब्लड को। इट नेवर रेस्ट। ब्रेन भी जो है रेस्ट करता है, हाथ पैर भी रेस्ट करते हैं, बट ये जो बॉडी का पार्ट है ये कभी रेस्ट नहीं करता। एंड इट्स लाइक इन अ मिनट द हार्ट बीट इज़ 72, सो दैट मीन्स 60 सेकेंड में 72 टाइम्स हार्ट हमारा जो है बीट करता है, धक धक करता है, राइट। एंड what does it do? I already told you, it pumps the blood. Now let's go through the video. I'm your heart. I live inside of your chest. I'm about the size of your fist, and I never take a rest. I'm your heart. You couldn't live without me. I pump the blood that fuels your body, so take care of me, please. The human heart is made up of 4 major chambers in me. The right atrium and right ventricle are the first 2 you see. They receive blood that's low in oxygen from your whole body and sends it to your lungs through your pulmonary artery. The lungs fill blood with oxygen that your left atrium receives and flows through the left ventricle to the aortic arteries. I'm your heart. I live inside of your chest. I'm about the size of your fist, and I never take a rest. I'm your heart. You couldn't live without me. I pump the blood that fuels your body, so take care of me, please. I can beat more than 100,000 times in one day, pumping about 2,000 gallons of blood through your body. There is about 60,000 miles of vessels in your circulatory system. I always keep them full. I have 4 valves that open and close that control the blood through me. The tricuspid, pulmonic, mitral, and aortic valves you see. I'm your heart. I live inside of your chest. I'm about the size of your fist, and I never take a rest. I'm your heart. You couldn't live without me. I pump the blood that fuels your body.
so take care of me, please. Very good. So we learnt a lot about heart. एक चीज़ हमने जो है इसमें सीखी है वो है कि हार्ट की साइज़ कितनी होती है. जो आपकी मुट्ठी होती है ना, फिस्ट, उस साइज़ का होता है हार्ट. दूसरा, हार्ट में बेसिकली अगर मान लीजिए जैसे आपका घर है, तो आपके घर में कितने कमरे हैं और कितने रूम्स हैं, मे बी 4, 5, 6 लाइक दैट. सिमिलरली हार्ट जो है, हार्ट में भी 4 रूम्स हैं. अब हम क्या है, उसको रूम्स नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं चैम्बर्स. सो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट. एंड दैट इज लेफ्ट टॉप, लेफ्ट बॉटम, राइट टॉप, राइट बॉटम. तो आप अगर ये वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको 4 चैम्बर्स उसमें नज़र आएंगे. यू कैन सी 4 चैम्बर्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, हार्ट करता क्या है, बेसिकली ब्लड पंप करता है, प्लस उसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, और ब्लड वेसल्स की अगर आप लेंथ देखेंगे तो इट इज़ लाइक 60,000 माइल्स. हमारी जो पूरी अर्थ है उसके हम 2 से भी ज़्यादा बार उसके चारों तरफ हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना हमारे बॉडी में, ब्लड वेसल्स होता है बेसिकली जो ब्लड कैरी करती है हमारी बॉडी में, राइट, ट्यूब सॉर्ट ऑफ थिंग. सो पूरी अर्थ के हम 2 से ज़्यादा बार चारों तरफ लपेट सकते हैं हमारी अर्थ के ब्लड वेसल्स को. इतनी ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में होती हैं. एंड एक दिन में हार्ट जो है हमारा 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है. द हार्ट बीट इज़ मोर देन 1 लाख इन अ डे. नाउ कमिंग टू ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी में ब्लड 2 तरीके के होते हैं. एक तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और एक होता है जो डर्टी ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जो जिसमें CO2 होती है. तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है दैट इज़ कैरिड बाय आर्टिलरीज. वो ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं आर्टिलरीज. और वो क्या होती है, थिक होती है साइज़ में, उनकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, मोटाई. एंड जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कैरी करने वाली ट्यूब्स को या ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं वीन्स. और वो होती है थिन, वो होती है पतली. अब हार्ट का काम तो सिर्फ क्या है, ब्लड को पंप करना, प्योर इम्प्योर दोनों ब्लड को. और लंग्स का काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन डालना और ब्लड में से CO2 निकालना. सो दैट इज़ वाई बोथ हार्ट एंड लंग्स दे वर्क टुगेदर. वो दोनों साथ मिलके काम करते हैं. हमारी बॉडी ऐसी नहीं कि एक एक बॉडी का पार्ट अलग अलग काम कर रहा है, पूरी बॉडी मिलके काम करती है. एंड दैट इज़ हाउ वी लिव. ओके. एंड एक फील्ड होती है, लाइक डॉक्टर्स बोलते हैं तो बहुत कॉमन नेम हो गया, बट जो डॉक्टर्स हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो सिर्फ हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं. ओके. सो नाउ वी हैव डन विद हार्ट. नाउ लेट्स गो थ्रू योर बुक. Brain, what is mentioned here, our brain controls all the functions of our body. That is what we learned in video. It is a part of our nervous system. Nervous system होता है बेसिकली सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल से कंट्रोल ऑफ आई, मूवमेंट ऑफ लेग्स, ये सब एक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं. नर्व्स होती हैं, वो सिग्नल भेजती हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सर्दी लगी, तो अब क्या है, आपकी बॉडी ने सिग्नल भेज दिया ब्रेन को कि बॉस सर्दी लग रही है, मुझे क्या करूं. ब्रेन जो है ऑर्डर देगा, सर्दी लग रही है, कंबल ओढ़ लो. सिमिलरली अगर मान लीजिए आपका हाथ जो है गर्म तवे पे लग गया, तो बॉडी में जो है सिग्नल जाता है हाथ से ब्रेन तक कि बॉस हाथ जल रहा है. ब्रेन जो है इमीडिएटली बोलता है हाथ हटा लो. तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है और बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है, मतलब सेकंड का बहुत कम पार्ट में हो जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलता. बट इतनी कम्युनिकेशन होती है हमारी बॉडी में. और डिसीजन कौन लेता है हमेशा, ब्रेन. ओके. इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड आवर हेड एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल. सो जो हमारा जो अगर आप सर पे थोड़ा अगर बीट करके देखोगे तो आप कुछ एक स्कल जो होती है उसको पाओगे, और उसके अंदर जो है वी फाइंड आवर ब्रेन. So the brain is covered or protected by skull. And why so?
अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, थोड़ी सी भी चोट लगने पे हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन बॉक्स है जो स्कल है हमारा। द ब्रेन connects to the nerves that travel throughout our body. Nerves from our sense organs like eyes, ears, nose, skin, etc., right, sends signal to the brain and receive signals from the brain. Also our brain stores information in the form of memories. और जो आपके जैसे अगर मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, सिमिलरली हमारी बॉडी में हमारा मेमोरी कार्ड क्या है, ब्रेन। सो सारी आपकी मेमोरीज ब्रेन में आके स्टोर होती हैं। और बाकी जो है, जो भी बुक में लिखा है, दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर ओन लैंग्वेज। नाउ लेट्स गो टू लंग्स। द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग्स क्या है, प्राइमरी ऑर्गन्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एंड देयर आर टू लंग्स located near the backbone on either side of the lungs that helps us to breathe. It's a part of respiratory system, so of course they have to help us to breathe. The lungs expand when we take in oxygen. So when we breathe in or inhalation, the lungs expand, and they contract when we exhale carbon dioxide. This is called exhalation. So inhalation, सांस अंदर लेना, in, and exhale, सांस बाहर छोड़ना। ओके, नाउ हार्ट। व्हाट इज हार्ट? हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मतलब इसमें मसल होती हैं, और दैट इज़ वाई इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। तभी तो बीट करता है, धक धक इसीलिए करता है, बिकॉज इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। इट पंप्स ब्लड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड ट्यूब्स होती है ना, जो ब्लड को कैरी करती हैं, एंड दिस ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलेटरी? सर्कुलेटरी जैसा नाम से पता चलता है आपको कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता है, वो बॉडी के अंदर ही रहता है, सिर्फ सर्कुलेट करता रहता है। और ऐसा नहीं कि जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर नहीं होगा। प्योर ब्लड जाता है, उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, वो इम्प्योर हो जाता है। वो इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं ब्लड में से, एंड देन इट बिकम्स, उसमें ऑक्सीजन मिला दी, ये प्योर ब्लड हो गया। सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज दिस वर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स क्या करती रहती हैं, सर्कुलेट करती रहती हैं ब्लड को। What is the next one? Blood provides the body with oxygen and nutrients, and we need oxygen to survive, okay? It also collects carbon dioxide and the waste material from all parts of the body to the excretory organs, which remove waste from our body. Now excretory organs वो होते हैं which removes the waste from our body. We will discuss more later. Our heart is of the size of a fist. In humans and other mammals and in birds, the heart is divided into 4 chambers, right? The upper left and right chambers are called atria. The lower left and lower right are called ventricles, okay? Now blood flows through all the 4 chambers of our heart. And we'll stop here, and in the next class we will continue with the remaining internal organs of the body. So thank you.